Good morning everyone. Here I am Poonam Tadiyal. Students, today I will explain you kinds of sentences. But before doing this chapter, I will explain you what is sentence. So listen carefully. As you can see, this is your chapter 1, the sentence. I know you had done this chapter. I am again explaining this chapter. It is very Students, we know when we speak or write, we use words. We use these words in groups so that people can understand us. Okay, people will not understand us if our group of words are not put in a proper order and make sense. हमारा जो सेंटेंस है वो कब अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, जब वो प्रॉपर ऑर्डर में ना हो. See here, to garden the went I. It is not clear and doesn't make a complete sense. Okay, so it is not a sentence. In the garden, also not a complete sentence. Okay, it doesn't make a sense. Clear? So, what is sentence? A group of words that makes complete sense is called a sentence. For example, read the following groups of words. I am Naveen. Jeet is my brother. The book is on the table. These sentences make complete sense. Okay? And we can easily understand it also. समझ रहे हो ना कि आई एम नवीन, ये क्या बता रहा है, मैं नवीन हूँ. जीत मेरा भाई है और क्या है, बुक टेबल पे पड़ी हुई है. यानी कि बच्चों, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में हो, हम अपनी बात को जब रखते हैं और दूसरा वाला उसे समझ लेता है, प्रॉपर मीनिंग में हम रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं. क्लियर? रिमेंबर इट ऑलवेज स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर. इट मेक्स कंप्लीट सेंस and most important thing is that it ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. Here is a full stop, question mark and exclamation mark. Exclamation mark means जो आप हिंदी में पूर्ण विराम देखते हो ना, उसके नीचे ऐसे बिंदी, इसे क्या कहते हैं, exclamation mark. ओके, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कैसे होता है, जैसे कि आप कोई हुक टाइप का होता है ना ऐसे, और उसके नीचे फुल स्टॉप, और यहाँ पे एक खाली बिंदु, ये फुल स्टॉप, डेट इज. और सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सेंटेंस. नाउ वी अगेन बैक टू अवर चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. Statements, sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. Students, a statement sentences make a statement or give a information. It ends with the full stop. Statement sentences always capital letters से start होते हैं और end किससे होते हैं, full stop से. Okay? और ये हमें क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ टॉय शॉप नियर बाय. ओके, दिस सेंटेंस गिव अ इन्फॉर्मेशन, सो इट इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट सेंटेंसेस. आई लाइक वाटरमेलन. दिस सेंटेंस ऑल्सो गिव अ स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन टू अस दैट आई लाइक वाटरमेलन्स. इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि आई क्या करता है, पसंद क्या करता है, मैं वाटरमेलन पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो these sentences are called statement sentences. Next one is interrogative sentences. Interrogative sentences ask a question. It ends with the question mark. Clear? Interrogative sentence क्या करते हैं, ask, question ask करते हैं, और ये किससे end होते हैं, question mark से. It is very easy to recognize that this is a interrogative sentence to see the question mark. क्वेश्चन मार्क को देख के ही आप इजीली बता दोगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्लियर? और ये डब्ल्यू फैमिली से शुरू होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है. इट इज़ वेरी इजी.
to recognize that it is a interrogative sentence. The third one is imperative sentence. Imperative sentences gives a command, make a request or give direction. Okay, these types of sentences is called the imperative sentence. It mostly ends with the full stop. Okay students, imperative sentence कैसे पता चलेगा हमें? या तो वो रिक्वेस्ट होगी या कोई कमांड होगी और या कोई डायरेक्शन दी होगी. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. दैट इज़ अ रिक्वेस्ट सेंटेंस. रिक्वेस्ट की गई है मेरे लिए पानी लाओ. जहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट दिखे, ऑर्डर दिखे, ठीक है, तो वो क्या होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. स्विच ऑफ द फैन. स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ कर दो, दैट इज ऑर्डर. क्लियर? सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंस. Students, listen carefully. The subject is an imperative sentence is always in the second person. It is implicit and often not spoken. Imperative sentences में always जो subject होता है वो missing होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो second person होता है. किसी second person को ही हम order देंगे, request करेंगे. Clear? जैसे for example, don't go there. Switch off the fan. हम switch off the fan और don't go there, वहाँ नहीं जाना, इसमें आप किसको कह रहे हो? किसी दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन को. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैंने आपको करवा चुकी हूँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ना. तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है? सब्जेक्ट क्या है आपका? यू. ओके, सब्जेक्ट क्या है? यू. आप यू यानी सेकंड पर्सन को ही कह रहे हो ना. सो द सब्जेक्ट इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज इन द सेकंड पर्सन. ओके, सो स्विच ऑफ द फैन, हेयर द सब्जेक्ट इज यू. क्लियर? सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज called imperative sentence. The last one is exclamatory sentence. Exclamatory sentence expresses happiness, anger, fear, disgust and shock. It's end with the exclamation mark. It is very easy to recognize this exclamatory sentence because of that exclamation mark. जहाँ भी आपको exclamation mark दिखे वो क्या है? exclamatory. दो तो आपको बहुत इजी से आप क्या कर लोगे? आइडेंटिफाई कर लोगे विद द क्वेश्चन मार्क एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. अभी आपके क्या बचे? सिर्फ स्टेटमेंट और इम्पेरेटिव. स्टेटमेंट में आपको सिर्फ क्या मिलेगी? इन्फॉर्मेशन. और इम्पेरेटिव में मैंने आपको बताया क्या मिलेगा? ऑर्डर, है ना, रिक्वेस्ट. क्लियर है? तो वहाँ पे आपको क्या होगा? वहाँ पे आपका ये चीज़ भी ध्यान रखोगे कि वहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट मिसिंग होता है. क्लियर है ना? तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कौन से सेंटेंस है इम्पेरेटिव. सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट दैट सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, सेंटेंस इज अ इंट्रोगेटिव, सेंटेंस इज अ इम्पेरेटिव और सेंटेंस इज अ एक्सक्लेमेटरी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और statement. Our first sentence is please open the door. Please open the door. Here there is no subject. Subject नहीं है. मैंने आपको बताया भी था जहाँ पे subject ना हो और request हो वो कौन सा sentence होता है? Imperative. Imperative sentence. You have to write here imperative sentence. Spelling is given. You have to write here imperative sentence. Are school books available in your store? Question mark. It is very easy to recognize what type of sentence is this. बिल्कुल आसान है ना बच्चों रिकग्नाइज करना कौन सा सेंटेंस है ये. क्वेश्चन मार्क देखते ही आप क्या बोलोगे इसे? इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यू हैव टू राइट हियर इंट्रोगेटिव. नेक्स्ट वन, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. इट गिव द इंफॉर्मेशन. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. स्टेटमेंट है ये, तो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस. हियर यू हैव टू राइट स्टेटमेंट. मदर इज कॉलिंग यू. मदर इज कॉलिंग यू. इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट कि मदर आपको बुला रही है. तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट. डोंट टॉक इन माई क्लास. डोंट टॉक इन माई क्लास. एज यू कैन सी हियर, कोई किसी को क्या कह रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि मेरी क्लास में मत बोलो. हियर सब्जेक्ट इज ऑल्सो मिसिंग. सो what type of sentence this is? This is type of
imperative. Again you have to write imperative sentence. What are you doing here? Again question mark. Interrogative. It is very easy. Please tell us the story of Cinderella. Please. Request, then it is imperative. Shanti, you should go to the doctor. तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास. इट इज़ कॉल्ड, ये एडवाइस दे रही है, शांति को एडवाइस चल रही है ना, एडवाइस दी जा रही है. तो एडवाइस भी जब हम किसी को देते हैं तो वो इम्पेरेटिव में आ जाता है. किस में आ जाता है? इम्पेरेटिव में. एडवाइस देना, ऑर्डर देना, सलाह देना, ये मतलब एडवाइस तो सलाह ही होती है. तो सलाह देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, तो ये सारे किस में आते हैं? इम्पेरेटिव में आ जाते हैं. क्लियर है? व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वॉज! Exclamation. It is very easy to recognize this type of sentence. Which type of sentence this is? Exclamatory. It is very easy with the sign. Children, please come inside the class. ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है? यहाँ प्लीज़ है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन से कि क्लास के अंदर आ जाएं. तो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज? दिस इज इम्पेरेटिव. सो स्टूडेंट्स, I hope you understood this chapter, kinds of sentences. You have to fill page number 12 in the same way. Okay. Have a nice day, बच्चों.